ویلکم بیک. آپ کو خیبر پختونخوا سواتیں چلیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. دوسری بات پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے. ملک اداروں کے فیصلوں پر نہیں، شخصیات کے فیصلوں پر نہیں، ملک آئین سے چلتے ہیں. آئین سے. اس ملک میں آئین توڑنے والے یہ بات سن لیں کہ وقت آئے گا کہ آئین توڑنے والے کو جو سزائے موت کی سزا اس آئین میں دینے کا کہا گیا ہے اور ہم پھانسی پہ ان کو لٹکائیں گے. یہ بار بار آئین توڑنے والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ ان کی بھول ہے. اصل طاقت عوام ہے. ہمارے لیڈر کو جیلی پرچوں میں جو سزا ہو رہی ہے اور وہ 300 سے زیادہ دن جیل میں گزار چکا ہے اور اب پتہ چلا کہ اس پرچے میں کچھ نہیں تھا، اس کیس میں کچھ نہیں تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حساب نہیں لیں گے، خدا کی قسم ایک ایک دن کا 100 دن کے برابر حساب دینا پڑے گا تمہیں. تیار ہو؟ لڑو گے؟ آگے بڑھو گے؟ حق لو گے؟ حق چھینو گے؟ مجرم کو سزا دو گے؟ ڈنکے کی چوٹ میں دو گے؟ اس چوک میں دو گے؟ ہم لوگ انشاءاللہ اپنے ابائداد سے لے کر آج تک ایک تاریخ رکھتے ہیں. اوے زرداری، اوے شبو، او بلو، او نواز شریف، تو انگریزوں کا نوکر ہے، تو ان کا غلام ہے. ہمارے آباء اجداد نے انگریز کو بھگایا ہے، تو کس باغ کی مولی ہے؟ تیرا تو پتہ بھی نہیں چلنا تو کہاں گیا ہے. ہمارے ہی غلط انہی لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہمارے اپنے ملک کے اندر جنگیں ہوئی، ہمارے اپنے ملک کے اندر آپریشن ہوئے، ہمارا جانی نقصان ہوا، ہمارا مالی نقصان ہوا، بار بار ہوا. پھر بھی ہم قربانی دے رہے ہیں. یہ ہمارا ظرف ہے. یہ پولیس کھڑی ہے پختونخوا کی. میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر کسی کے کہنے پہ ظلم کیا تھا، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، اس لیڈر عمران خان کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، فالوور ہیں. ہم نے آپ سے سوال تک نہیں کیا، لیکن اب جب میں اپنے صوبے کے حق کے لیے نکلوں گا، تم نے میرے ساتھ مجھ سے آگے نکلنا ہے، کیونکہ یہ صوبے کا حق ہے، ہمیں لینا پڑے گا. آپ بھی صوبے کی مٹی کے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے اوپر فنڈ بند کرنے کا، ناجائز اپنے واجبات نہ دے کر ناجائز ایک قبضہ مسلط کرنے کا جو پروگرام بنا ہوا ہے، سن لو سارے، سن لو. جہاں جہاں تک آواز یہاں سے جا رہی اور یہاں سے آگے موبائلوں سے جائے گی، خدا کی قسم تم لوگ اسلام آباد تو کیا پاکستان میں بھی نہیں رہو گے. یہ پاکستان تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں بیٹھ گئے ہو مینڈیٹ چوری کر کے تم بیٹھے رہو گے. ڈرو اس دن سے کہ عمران خان ایک آواز لگائے اور ہم یہاں سے نکلے، ابھی ہم پہنچے بھی نہیں ہوں گے اور تم پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤ گے. کشمیر والوں سے پوچھو ان سے کہ تمہاری آزادی کی جنگ کسے لڑی تمہارے ساتھ؟ وہ ایک ہی نام لیں گے، پشتون. 2 دن میں تمہاری انہوں نے ہوا نکال دی ہے. یہ پشتون نکل آیا، تمہارا پتہ بھی نہیں چلنا. ہمارے لیڈر عمران خان کو کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے حق کی بات کی، انصاف کی بات کی، پاکستان کی خود مختاری کی بات کی، پاکستان کی خودداری کی بات کی، کشمیر کے مسلمانوں کی بات کی، فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے ماڈل کی بات کی. اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ آج جو ہماری نسلوں کے لیے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں.
आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक बार फिर शिकवा किया। कहते हैं, मुझे हर बार वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, कोई शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन पूछ तो सकता हूं कि क्या वजह थी कि वज़ीर-ए-आज़म को बाहर फेंका और असेंबलियां तोड़ दी। जब परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत गिराई तो अदलिया ने परवेज मुशर्रफ को गले लगाया और कहा कि आपको तो पहले आना चाहिए था। मैंने दुख और मुसीबतें काटी लेकिन हमारा अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में बेरोजगारी का नामो निशान ना होता। दिल के अंदर कोई शिकायत या शिकवा या गिला दुनिया से भी चलेगा तो क्या शिकवा होगा, लेकिन सिर्फ मैं ये पूछता हूँ कि आज सिर्फ ये बताएं वो कि क्या वजह थी कि उन्होंने एक अच्छे भले वज़ीर आज़म को, गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ के बाहर फेंका और उसके बाद फिर असेंबली भी तोड़ दी। अदलिया ने उनका वेलकम किया, गले में हार पहनाया। हम भी मुतज़लज़ल नहीं हुए, दुख काटे, मुसीबतें काटी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि हमेशा सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी अपनाए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मिसाक़े जमहूरियत किया। बानी पीटीआई के घर जाकर इनको कौम की खिदमत में हिस्सा डालने की दावत दी, लेकिन वो नफरत की सियासत करते रहे। कहते रहे कि सबको जेल में डालूंगा, नवाज शरीफ का AC उतारूंगा। आज वो जेल में है तो मुझे इनकी सहूलतों पर एतराज़ नहीं, वो एक की जगह 2 AC लगवा लें। मैं ऐसी बातें दिल में रखने वाला कीना परवर नहीं हूँ। मैं चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और मैंने, हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे। हम जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, मजबूत करने के लिए हम आपस में मिल के गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेते हैं। रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं। गुजरावाला में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम फॉर्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म या उनकी टीम से क्या बात करें। जो फॉर्म 47 की पैदाइश हैं वो शिकस्त खोर्दा हैं, असेंबली में हमसे आंखें नहीं मिला सकते। हम बात करना चाहते हैं लेकिन बातचीत से कबल ग्राउंड्स बनाना होती हैं। उन्होंने बानी पीटीआई पर केसेस पे केसेस बनाने हुए कहा कि हम आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये लोग वाकई बात करने पे आमादा हैं तो हमें हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस करें। वो फॉर्म 47 वाला वजीर आजम या उनकी टीम, उनसे क्या मुज़ाकरात हम लोग करेंगे? उनको मालूम है शिकस्त खुर्द है। ये मेरे साथ अहमद छट्टा साहब है, हम लोग नेशनल असेंबली में बैठते हैं, यकीन जाने हमारे साथ आंखों में आंखें मिला के वो बात ही नहीं कर सकते हैं। किसके साथ हम लोग बात करें? वो तो भागते हैं हमें, वो तो हमें देख के डरते हैं। वो तो इमरान खान साहब का चेहरा देखते हैं तो वो डर के भाग जाते हैं। बात करने से पहले सबसे अहम बात है कि आपने ग्राउंड बनाने होते हैं। वो इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने केसेस पे केसेस लगाए हुए हैं। आइन और कानून की बालादस्ती, हमारे लीडर का जो कॉल है उस पर हम लोग डटे रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा चुराया हुआ मैंडेट जो है फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने उड़ाया, वो हमें वापस दें। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में दूरियां कम, मामला तय पाने लगे। साबिका सियासी हरीफ वफाकी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने के इंतहाई करीब। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी पीटीआई तक पहुँच गए। बानी पीटीआई ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बानी पीटीआई की फजलुर रहमान से मिलकर मामला तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील की हिदायत। असद कैसर मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही करेंगे। मुज़ाकराती कमेटियाँ मुतफ़क़ा हिकमत अमली मुरतब करेगी। मुतफ़क़ा हिकमत अमली के लिए एहतजाजी तहरीक समेत दीगर नुकात पर पहले इत्तफ़ाक़ राय किया जाएगा। इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान और बानी पीटीआई दस्तखत करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं की FIA साइबर विंग पेशी का मामला। पीटीआई रहनुमाओं से पूछे गए सवालात की तफसीलात सामने आ गईं।
FIA ने PTI रहनुमाओं से पूछा, बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चलाता है, मुतनाज़ वीडियो किसने बनाई, कहां से अपलोड हुई, बानी PTI की सोशल मीडिया टीम के मेंबरान कितने और नाम क्या हैं। FIA की तहकीकाती टीम ने रऊफ हसन से सवाल किया, आपके फ़राइज़ क्या हैं, बानी PTI के साथ किन सहाफ़ियों के करीबी ताल्लुकात हैं। रऊफ हसन ने FIA की तफ्तीशी टीम को जवाब में कहा कि मैं PTI का सेक्रेटरी इत्तलात हूँ, सोशल मीडिया टीम को नहीं जानता, मेरा अखबारात और न्यूज़ चैनल के साथ ज़्यादा राबिता होता है। अदालत ने मुशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर के भाई अफीफ सगीर समेत दीगर मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया, जबकि सरदार तनवीर इलियास के उमर तनवीर और उस्मान तनवीर को पुलिस ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। सरदार तनवीर इलियास के बेटों और दीगर के खिलाफ थाना वारगला में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने मुशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर के भाई अफीफ सगीर समेत दीगर मुल्ज़िमान को अदालत पेश कर दिया। अदालत ने पुलिस के सरदार तनवीर इलियास के ड्राइवरों समेत दीगर गिरफ्तार मुलाजमीन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने अफीफ सगीर समेत दीगर गिरफ्तार मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्ज़िमान को दोबारा 22 जून को 173 की रिपोर्ट के साथ पेश किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर समाअत 10 जून को होगी। अहम खबर शामिल करेंगे। इर्तका कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। CIA कराची का कोयटा में छापा, गुलशन इकबाल में स्ट्रीट क्राइम में कत्ल होने वाले इर्तका के कातिल गिरफ्तार कर लिए गए। ज़राए CIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान इर्तका के कत्ल के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को छीना झपटी में मुलविस थे। DIG मुक़द्दस हैदर के मुताबिक कुछ मुल्ज़िमान की निशानदेही की गई है। SSP अदील चांडियो का कहना है कि मुल्ज़िमान तरबियती याफ्ता हैं। स्टार मुगीर हमासत कराची से लाइन पर मौजूद हैं। जी स्टार, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, CIA कराची का कोयटा में ये छापा है। गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट अर्तका के कत्ल के जो कातिल हैं वो ज़ीरे हिरासत हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान अर्तका कत्ल के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। ज़रा CIA का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की छीना झपटी में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान बलूचिस्तान में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फरोख्त करते हैं। और जो ये गोल्ड मेडलिस्ट जो नौजवान है, इसको कत्ल के केस में ये अहम पेशरफ्त पुलिस ने की है, जिसमें DIG मुक़द्दस हैदर का कहना है कि कुछ मुल्ज़िमान की निशानदगी की गई है। SIU की टीम बलूचिस्तान में इस वक्त मौजूद है और जो है कत्ल के केस में अहम शवाहिद जो है वो मिले हैं। मुल्ज़िमान तरबती याफ्ता हैं और ग्रुप का जो सुराग है वो लगा लिया है। जल्द दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उन तक भी पहुंचा जाएगा और उसके साथ साथ जो मजीद इंकशाफात हैं वो भी मुतवक्के हैं। मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। CIA की कार्रवाई के हवाले से स्टार मुगीरी आप अपडेट कर रहे थे। मुल्तान के नवाही इलाके में जमींदार ने चोरी के शुबे में 2 नौजवानों को अगवा करके बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से 25 साल का नौजवान जान बहक जबकि उसके साथी को जख्मी कर दिया। बुरसा का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अख्तर शेख का। अख्तर शेख बताएगा, बुरसा सरापा एहतजाज है। जी बिल्कुल, टाटापुर के इलाके में ये वाक़या पेश आया जहां वकास अहमद और वकास अमी 2 नौजवानों को इलाके के जिम्मेदारों ने चोरी के शुबे में अगवा किया और अपने डेरे पर ले जाकर बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान उनकी जब हालत ख़राब हुई तो उन्होंने पुलिस के ज़रिए उनको निश्चित अस्पताल दाखिल कराया, जहां एक नौजवान वकास अहमद दम तोड़ गया, जबकि दूसरा जो नौजवान जिसका नाम भी वकास बताया गया है उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गुज़श्ता रोज़ वर्षा ने लाश जो वसूल किया निश्चित अस्पताल से, जिसके बाद वहाँ लोगों में सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। इस वाक़े के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि इस वाक़े में मुलविस 4 मुल्ज़िमों को हिरासत में ले लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख हमें आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके, जलजले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज योब से 77 किलोमीटर दूर और गहराई 90 किलोमीटर थी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत 4.2, गहराई 90 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। दोबारा हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे वर्ल्ड कप T20 2024 की। पाकिस्तानी शाहीन भारतीय सुरमाओं पर झपटने को तैयार हैं। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और अहम मैच कल रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 पर न्यूयॉर्क में मध्य मुकाबले आएंगी। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक 7 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। भारत ने 5, पाकिस्तान ने 5 मैच अपने नाम कर रखे हैं। दोनों टीमों के दरमियान एक मैच ड्रॉ हुआ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होने जा रहा है। पाकिस्तानी शाहीन भारतीय सूरमाओं पर झपटने को तैयार। पाकिस्तानी शायकीन भारतीय शायकीन के साथ मैच के लिए बहुत ज्यादा बेताब नजर आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट शायकीन शाहीन शाह अफरीदी के फैन निकले। अमेरिका में भारतीय शायकीन ने शाहीन शाह अफरीदी को घेर लिया। शाहीन शाह ने भारतीय फैंस के साथ फोटोज भी बनवाई। रोहित और विराट को अपने अच्छे दोस्त समझो। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बजट के हवाले से। एफबीआर के लिए टैक्स का हदफ 40% इजाफे के साथ 13,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। मुजवज़ा हदफ के लिए 2,000 अरब के मजीद टैक्सेस लगाना होंगे। दरामदात पर आयद टैक्स 5% तक हो जाएगा। एफबीआर ने इनकम टैक्स में इजाफे की 3 तजावीज़ दी हैं। मैन्युफैक्चरर्स से लेकर रिटेलर्स तक 2.5% इनकम टैक्स आयद करने पर गौर किया जा रहा है। ये इनकम टैक्स नॉन फाइलर्स पर आयद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तमाम होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर 1% टैक्स आयद करने पर 400 अरब रुपए आमदन होगी। एफबीआर ने अपनी तजवीज़ में दरामदात को शामिल नहीं किया। दरामदात को शामिल करने से हुकूमत 2.5% इनकम टैक्स के जरिए 1,000 अरब रुपए जमा कर सकती है। एफबीआर की तिजारती दरामद कुनंदगान के अलावा हर तरह की दरामदात पर विद होल्डिंग टैक्स में 1% इजाफे की भी तजवीज़ है। ठेकेदारों, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स और खिलाड़ियों पर इनकम टैक्स में इजाफे की भी तजवीज़ दी गई है। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने अब तक ताजिरों के नुमाइंदा इदारों और स्टेक होल्डर्स के साथ कोई मुशावरत नहीं की है। 9,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा नहीं हो सका। अब 13,000 अरब का टैक्स कैसे इकट्ठा हो सकता है? दस्तावेजी मईशत की तरफ जाना होगा मगर टैक्स दहिंदगान को मजीद मत निचोड़ा जाए। अनफॉर्चुनेटली ये पहली दफ़ा हमें ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के जो सजेशंस हैं उनको लेके कोई सीरियस नहीं है। इससे पहले देखें जब फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब थे, हमारी उनके साथ मुलाकातें होती थी। अनफॉर्चुनेटली जब से औरंगज़ेब साहब आए हैं इन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकातें नहीं की और बिज़नेस कम्युनिटी क्या चाहती है इसके ऊपर कोई उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। तकरीबन 12,900 अरब रुपए के टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा जा रहा है और अभी जो ये ईयर हमारा ख़त्म हो रहा है इसमें जो हमने टारगेट रखा था 9,300 अरब का, हमसे वो भी पूरा नहीं हो रहा और आप देखिएगा कि वो तकरीबन टारगेट हमारा मिस हो जाएगा। तो जब हम 9,300 का टारगेट कलेक्ट नहीं कर सके तो 12,900 का टारगेट हम कैसे कलेक्ट कर पाएंगे? अब आपको ये कल्चर ख़त्म करना होगा कि जो एक टैक्स पेयर, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसी को निचोड़ा जा रहा है। आप जब तक टैक्स बेस को ब्रॉडन नहीं करेंगे, नए टैक्स पेयर्स नहीं लाएंगे और जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है पाकिस्तान की उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे तो आप यकीन जानिए वो लोग जो अभी टैक्स दे रहे हैं वो भी टैक्स नेट से बाहर चले जाएंगे। कुछ बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आशियान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने मसनूई रोशनी के जरिए सब्जियों की काश्त के तरीक़ाकार का भी जायजा लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए इदारे के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। 1,000 तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। पाकिस्तान में चीन तर्ज की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पाकिस्तानी तलबा दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। We'll be more than happy to send our delegation to participate in that event. We want to build a campus, or not of this size, but of a smaller size in Pakistan, with all these interventions which we have here. And second course is, which is immediate, we send batches of students to get technical training over here. And of course, we will bear the cost of boarding and lodging and education here in Shanxi. That's what I have been thinking ever since morning. And with your cooperation and our ambassador in Islamabad and our ambassador in Beijing,
I hope we can convert this dream into a reality. खबरनामे में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सारिम बर्नी के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए FIA की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। सिटी कोर्ट कराची में बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग के केस की समाअत हुई है। अदालत ने सारिम बर्नी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। सारिम बर्नी की दरखास्त जमानत पर समाअत 10 जून को होगी। दौरान समाअत FIA ने अदालत को बताया कि मुलजिम ताउन नहीं कर रहा। जो सवाल पूछते हैं जवाब मिलता है कि पता नहीं। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के खिलाफ FIA ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। FIA ज़राए के मुताबिक एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से मुंतकिल होने वाले बच्चों और बच्चियों के डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। पेशावर और सूबे के दीगर अजला से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। FIA सूबे में मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। अपडेट करें आपको सारिम बर्नी के हवाले से। पेशावर और सूबे के दीगर अजला से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। FIA की जानिब से कहा गया है सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के खिलाफ FIA ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतकिल होने वाले बच्चों और बच्चियों का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के खिलाफ FIA ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। पेशावर और सूबे के दीगर अजला से डेटा को इकट्ठा किया जाएगा। FIA का ऐसा कहना है। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के खिलाफ FIA ने तहकीकात का दायरा कार वसी किया है, जबकि बच्चों और बच्चियों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा से मुंतकिल किया गया। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के खिलाफ FIA ने अपनी तहकीकात का दायरा वसी किया है। पेशावर और सूबे के दीगर अजला से डेटा इकट्ठा किया जाएगा। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के खिलाफ FIA ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। मोहम्मद तैयब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद तैयब बताएगा, दायरा कार वसी किया गया है। FIA का ऐसा कहना है कि पेशावर समेत दीगर अजला से डेटा इकट्ठा किया जाएगा बच्चों का। जी बिल्कुल, FIA ने जो तहकीकात का दायरा है वो वसी कर दिया है और खैबर पख्तूनख्वा समेत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला से भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। FIA ज़राए के मुताबिक जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल है FIA का, वो डेटा इकट्ठा कर रही है और इस हवाले से मुख्तलिफ अजला में जो उनके सेल्स है और सर्कल है उनसे डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। FIA के ज़राए के मुताबिक सूबे में इस वक्त मुख्तलिफ ज़रियों से तहकीकात की जा रही है। जी तहकीकात की जा रही है। मोहम्मद तैयब आप हमें अपडेट कर रहे थे। इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ्त बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मअतली की दरखास्त दायर कर दी है। बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दरखास्त दायर की है। दरख्वास्त में बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा की गई है। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। दरख्वास्त में सजा की गई अदालत 3 फरवरी की सजा का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी करे। इस्तगासा ने तजाद से भरपूर कमजोर शवाहिद अदालत में पेश किया। इस शवाहिद की बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती थी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। हतक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हतक इज्जत कानून आइन और कानून के मनाफी है। हतक इज्जत ऑर्डिनेंस और हतक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हतक इज्जत कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। अदालत हतक इज्जत के कानून को कलअदम करार दे। दरखास्त के हतमी फैसले तक हतक इज्जत कानून पर अमल दरामद रोका जाए।